This conference will now be recorded. So I'm going to start from the very basic ताकि हमें एक आइडिया लग सके कि एक्चुअल में Azure कैसे काम करता है, right? Right. So how we can describe about cloud technology? What is cloud technology? Okay. Cloud is okay. So cloud is divided in the three parts: IaaS, PaaS, and uh, SaaS service. So Mm-hmm. because we no need to manage the infrastructure. So during that time, whenever is required, so we will launch the service over there, and there is the something like that. Something like that you talking about, or the different one? Yeah. I just wanted to know. I'm not talking about the Azure. I wanted to know about the cloud. Okay. अभी हम क्लाउड की बात कर रहे हैं. We don't want to know about the Azure. Azure is a separate cloud provider. तो we just wanted to know about कि cloud अगर हमें पता है तो definitely Huh. कोई भी provider हम आसानी से समझ सकते हैं. Okay, so if we go with the normal definition, so we this is the on-demand ability computer system resources, and data storage is also there, and the computer power is also there, and we directly Hmm. access to the server. We no need to manage. There is a three categories. Categories is there: IaaS, PaaS, and SaaS, and we can manage Hmm. the service according to that. So most of the cloud side, we just go with the IaaS side. So because we there is a categorization what we have to manage in the IaaS side. Virtualization we don't need to manage. Networking we don't need to manage. The up top of that we have to manage like any VM you are going to launch, something like that. So this thing. Okay, so what are the example of infrastructure as a services? Okay. So infrastructure as a service, because when we going go with the infrastructure as a service, so whenever if you're talking about the on premises, there is the network storage service and virtualization, and on top of Mm-hmm. that the OS and whatever service you want to run, and the runtime and data and application. These are the categorization in the on premises. But what happened, this categorization, the vendor is going to what vendor is going to provide the network storage server and virtualization is managed by the AWS team, not to us. We are the responsible. The on top of that, the whatever OS is going to launch, what middleware service you're going to launch, runtime, data, and application. So this is our Mm-hmm. responsibility. Okay, fine. Fine. So let me explain you about the from basic, Okay. the actual gap between these services because these all are the backbone. I'm not talking about only Azure. Ah, In okay. future, if you want to learn any other technology like you are responsible to manage services from Google Cloud या Alibaba Cloud पे आपको task perform करने हैं, तो you Okay. should know about actual base क्या होता है इनका, right? Hmm. Fine. So yes, it is categorized in three different part, which is related to infrastructure as a services and then platform as a services, and we should know about the SAS, correct? Correct. So infrastructure as a services is also considered as a manageable service, right? What do you think Hmm. about the manageable services? The meaning of manageable services means you and customer are me responsible to manage up to 75% task managed by user. Okay, Okay. I'm talking about the Hmm. customer or user, and Okay. only 25% task managed by provider. Any provider, it may be Amazon, it may be a Google Cloud, or it may be a Microsoft Azure. Okay, Okay. so infrastructure Okay. as a services, which is categorized in two different part. One is manageable service, and another is provider. We have a number of example, like as a virtual machine is a core example of infrastructure. Our storage is example of infrastructure, and our database and network devices. Okay. These all are the example which is considered as a infrastructure as a services. Let me explain you. SQL database हो गया या फिर आपने
कोई भी नेटवर्क डिवाइसेस इस्टेब्लिश कर रखी है विच इज को रिलेटेड टू इंफ्रास्ट्रक्चर. The meaning of manageable service means you are responsible to perform 75% tasks. You Mhm. can make a changes. You are able to make a changes with your resources that you already purchased. बहुत से एग्जांपल हैं. फॉर एग्जांपल आपने एक VM तैयार की like as with configuration of 4 gig of RAM, 2 core of processor, and up to 1 TB of HDD, right? And with Hmm. Windows 2012 operating system, this is the configuration जब आपने purchase किया था. Hmm. Right. After 6 months, you realize कि 4 GB RAM, 2 core processor, 1 TB RAM में काम नहीं होने वाला. We need to increase it. We need to increase the CPU and RAM and hard Hmm. drive as well. We wanted to add an additional hard drive. We wanted to update our operating system. So you are owner of this machine and you can do it by self. आप इसको treat करेंगे just like on-premises machine. Azure अपनी तरफ से कुछ भी नहीं देगा. Got it? What I'm saying? Got it. Hmm. मीन्स अगर आपको 1 TB में काम नहीं हो रहा है एंड यू रिक्वेस्टेड फॉर 500 गिग तो यू आर रिस्पॉन्सिबल टू मैनेज इट. एज्योर बोलेगा Correct. भाई पे एज यू गो की सर्विसेज है, यू कैन जस्ट सेलेक्ट एंड ऐड विद योर वर्चुअल मशीन Hmm. बिकॉज यू सेलेक्टेड फॉर द इंफ्रास्ट्रक्चर I. एज ए सर्विस. Hmm. ईच एंड एवरी टास्क मैनेज बाय यू, अप टू 75% टास्क मैनेज बाय यू. वो केवल आपको बैकएंड में प्लेटफॉर्म दे देगा कि ये हमारा बैकएंड का होस्ट है, आपको जितना चाहिए इसमें से आप उठा सकते हो. इज दैट Okay. क्लियर? Yes. एज इट इज विथ स्टोरेज, आप कोई सा भी स्टोरेज परचेज करें, अनस्ट्रक्चर्ड स्टोरेज, स्ट्रक्चर स्टोरेज, किसी भी स्टोरेज पे अगर हम मूव करते हैं एंड यू वांटेड टू मेक एनी चेंजेस विथ योर स्टोरेज, तो आप अपनी तरफ से करेंगे, बैकएंड से वो कुछ भी नहीं करेगा. Okay. एंड एज इट इज सिक्वल, एज इट इज नेटवर्क. ठीक है. Got सो it. दो सर्विसेज विच इज अवेलेबल ऑन पोर्टल, जिस सर्विसेज में हम अपना टास्क, अपना एफर्ट ज्यादा दे रहे हैं, वो सारी सर्विसेज आपकी कंसीडर की जाती है इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विसेज में. इज दैट क्लियर? Yes. एंड यहीं पे अगर हम बात करें प्लेटफॉर्म एज ए सर्विसेज, तो जस्ट अपोजिट ऑफ आवर इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस, इसको हम बोलते हैं अनमैनेजेबल सर्विस. Unmanageable services are considered as a इंफ्रास्ट्रक्चर प्लेटफॉर्म एज ए सर्विसेज जिसमें से 75% टास्क यूजर की जगह पे प्रोवाइडर प्रोवाइड करेगा एंड वी Correct. आर रिस्पॉन्सिबल टू मैनेज ओनली 25% टास्क. Hmm. वी आर रिस्पॉन्सिबल टू परफॉर्म द टास्क ऑफ 25% और यूजर्स जो है जो प्रोवाइडर है वो 75% की एक्टिविटी को परफॉर्म करेगा. इज दैट क्लियर? Yes. We have a number of examples of platform as a services. I hope you heard about the load balancers, right? Yes. We have a load balancer. AWS के केस में I think 1, 2, 3, 4 different load balancers are available. In Correct. Azure, you also find 4 different types of load balancer. 4 Mm-hmm. तरीके के वहां पे होते हैं, 4 तरीके के यहाँ पे चार होते तक. हैं. दोनों का कॉन्सेप्ट बिल्कुल अलग है, राइट? वहां पे Okay. आप क्लासिक है, एप्लीकेशन है, Classic. राइट, Hmm. गेटवे Hmm. है एंड नेटवर्क है. Network. Correct. Azure के केस में you will find a load balancer, application gateway, traffic Hmm. manager, Azure front door. So कहीं ना कहीं ये जो load balancer services है ना, which is core part of our platform as a services. You are unable to find anything. आपको सिर्फ पैकेज परचेज करना है and you can perform any task. बैकएंड के लोड बैलेंसर के बैकएंड में क्या एल्गोरिथम यूज हो रहा है वो आपका Azure डिसाइड करेगा, वो आपका Amazon डिसाइड करेगा. Okay. We have a web application Hmm. that we consider as a web app. So web app is a one of important service जिसकी हेल्प से आप अपनी वेबसाइट को, आप अपने एप्लीकेशन को, आप अपने गेम को, कोई भी सर्विस को होस्ट करा सकते हैं, Hmm. which is considered as a platform as a services. Is it okay? Yeah. The core difference between platform and infrastructure, you can say that as we know very well about, you can बहुत ही बेसिक सा एग्जांपल लें, अगर हम डे टू डे लाइफ का एग्जांपल लें, तो इफ यू वांट टू ईट पिज्जा, राइट, आपको अगर पिज्जा लेना है तो पिज्जा खाना है, तो इसके दो मेथड हैं. एक तो ये कि आप पूरा
सब कुछ अपनी तरफ से बनाओ, आप घर पे बनाओ अपना जो माइक्रोवेव है, ये सारी चीजें, सारी प्रिपरेशन आप खुद कर रहे हो, डो बना रहे हो, उसके ऊपर टफिन्स डाल रहे हो, जो भी और रिक्वायरमेंट की चीजें हैं वो सब खुद से डाल के खुद से बेक कर रहे हो. इट विल टेक मच टाइम. इज दैट करेक्ट? यस. प्लेटफॉर्म एज ए सर्विसेज जस्ट लाइक आपने ऐप ओपन किया, और ऐप ओपन करने के बाद आप यू जस्ट नीड टू सेलेक्ट द प्लान, यू जस्ट नीड टू सेलेक्ट द फ्लेवर कि आपको कौन सा चाहिए, एंड आल्सो बेस्ड ऑन योर बजट. इज दैट करेक्ट? यस. आपने विद इन 2 मिनट, आई डोंट थिंक विद इन टू, लेस देन 2 मिनट, आपने केवल सेलेक्ट किया और फटाक से ऑर्डर कर दिया. विद इन 30 मिनट और विद इन 40 मिनट आपके पास प्रिपेयर्ड किया हुआ आइटम आपके पास आ गया. यू जस्ट नीड टू यूज इट. आपको बस यूज करना है उसको. दैट इज द एक्चुअल डिफरेंस बिटवीन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड प्लेटफॉर्म एज ए सर्विसेज. इंफ्रास्ट्रक्चर में आप मैनेज कर रहे हो जीरो से लेकर के जब तक वो रेडी नहीं हो जाता. क्लियर? इसमें Correct. कस्टमाइजेशन के ऑप्शन आपके ऊपर डिपेंड करते हैं कि आप कैसे कस्टमाइज करना चाहते हैं. और प्लेटफॉर्म एज ए सर्विसेज के केस में प्रोवाइडर डिसाइड करेगा कि आपने इतना पेमेंट दिया है, इससे ज्यादा हम आपको नहीं दे पाएंगे. इज दैट करेक्ट? यस. इसमें प्लान्स होते हैं. यू जस्ट नीड टू सेलेक्ट प्लान S1 प्लान, B1 प्लान, B2 प्लान, B1 B3 प्लान, लाइक दैट. सो जो प्लान आप परचेज करेंगे ना, उस प्लान के अकॉर्डिंग वो बैकएंड से सर्विसेज प्रोवाइड करेगा कि आपके प्लान में ये सारी चीजें आती है, हम इससे ज्यादा आपको असाइन नहीं कर सकते. इफ यू वांट टू मैनेज योर सर्विसेज बाय सेल्फ, सो प्लीज प्रोसीड विद इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विसेज. इस केस में आप इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विसेज को जा सकते हैं. We will discuss about the practical part of our infra and platform as a services, but I hope you understand about the concept Yes. of Yes. PaaS and IaaS, IaaS. Yeah. Done? Correct. Done. Let's talk about the software as a services. So basically, actually the meaning of software as a service is no hardware required. In this case, we are unable to purchase any services, no hardware required, in the sense we are not proceeding to purchase hardware over a Azure portal as well in format of virtualization. N number of example, we have n number of examples, like as a the best example of what we can say, that software as a services as you ready. And second, you can say that we have option to set up our environment. O365 बहुत ही बेस्ट एग्जांपल है अपने पास. बेस्टियन की बात करें तो बेस्टियन भी हमारा एग्जांपल है सॉफ्टवेयर एज ए सर्विसेज का. आई डोंट थिंक इसमें कोई हार्डवेयर की रिक्वायरमेंट होती है, या फिर आप ऑफिस 365 पोर्टल पे कोई भी सर्विस, कंप्यूटर, वर्चुअल मशीन, स्टोरेज खरीदते हैं, आपको लाइसेंस खरीदना है बस. अगर आपके पास लाइसेंस है, यू कैन परफॉर्म दैट टास्क. अगर लाइसेंस नहीं है तो हम कोई भी मेल बॉक्सेस नहीं बना पाएंगे. इज दैट करेक्ट? Yes. This is the actual difference between infra, platform and software. और आज की डेट में जितने भी क्लाउड प्रोवाइडर है ना, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ओनली द एज्योर, जितने भी क्लाउड प्रोवाइडर हैं वो हमें सभी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं. मींस दे So गिव अस ऑप्शन टू मैनेज द इंफ्रा, प्लेटफॉर्म एंड सॉफ्टवेयर. या correct. प्लीज. I have one quick question. So you mentioned the Bastion is a SaaS service over here, right? So करेक्ट. अभी क्या होता है कि whenever we are going to launch a Bastion, so during that time we need to create a subnet of the same name, the Bastion application service, something like that, right? So SaaS मतलब is the part of SaaS, like हम लोग जैसे कि subnet बना रहे हैं, vnet बना रहे हैं, then only we are going to launch the Bastion inside this one. Bastion is a separate service, and the prerequisite to create a Bastion, you must need to create additional subnet. सबनेट तो अभी भी इंफ्रा का पार्ट रहेगा ना, वो हमेशा इंफ्रा का पार्ट Correct. रहेगा. वो सबनेट आपने रेडी किया, आपने बेस्टियन को उठा करके उस सबनेट के ऊपर रख दिया है बस. Okay. बेस्टियन इज रिस्पॉन्सिबल टू परफॉर्म सेपरेट टास्क. बेस्टियन रिस्पॉन्सिबल टू एक्सेस योर वर्चुअल मशीन्स विदाउट RDP, विदाउट पब्लिक IP एड्रेस. इज दैट करेक्ट? Yes. वो आपको वेब ब्राउजर पे आपकी मशीन का एक्सेस दे देता है कि ठीक है, आप अपने इस बेस्टियन का यूजर आईडी एंड पासवर्ड मेंशन करो, वर्चुअल मशीन का यूजर आईडी पासवर्ड मेंशन करो. बेस्टियन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो आपको URL के ऊपर ही आपकी वर्चुअल मशीन का एक्सेस दे देगा. एंड यू हैव ऑप्शन टू कॉन्फ़िगर द MFA, सिक्योरिटी, AD, सब कुछ आप लगा सकते हैं. Okay.
तो यू कैन से दैट बेस्टियन की कंप्लीट डिटेल जब आप क्रिएट करते हैं ना, बेस्टियन को जब हम लॉन्च करते हैं, तो विच इज कॉम्बिनेशन ऑफ इंफ्रा प्लस एसएएस। ओके, क्योंकि आप सबनेट लगा रहे हैं, वीनेट को इन्वॉल्व कर रहे हैं, तो इंफ्रा हो गया। अगर आप केवल इंफ्रा हो गया। बेस्टियन की बात करें, तो बेस्टियन सेपरेट में एक तरीके का क्या है, सॉफ्टवेयर है, जैसे सर्विसेज है। सॉफ्टवेयर सर्विस, ओके, इट गॉट कैन इट। नॉट गिव यू एनी काइंड ऑफ हार्डवेयर, इट कैन नॉट गिव यू एनी काइंड ऑफ रिसोर्सेज। आपको कोई प्लेटफॉर्म नहीं देता, एक सर्विस है, एक्टिवेट किया आपको, उसमें मशीनों को जोड़ना है, एंड इट विल परफॉर्म द टास्क। गॉट नाउ इट। क्लियर? यस। Okay, this is the basic information of our cloud technology. Let's move ourselves to next important topic. And another important point में ये सभी क्लाउड प्रोवाइडर को, क्लाउड इंजीनियर को, आर्किटेक्ट को, एडमिनिस्ट्रेटर को एंड एसोसिएट इंजीनियर को मालूम होना चाहिए अबाउट रियली इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ एवरी क्लाउड प्रोवाइडर। आई एम टॉकिंग अबाउट सब्सक्रिप्शन, राइट? करेक्ट। So you know that जितने भी cloud providers हैं, they give us a subscription based services. तो सब्सक्रिप्शन में you should know about Azure subscription कितने तरीके के होते हैं, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। How many subscriptions are available in Amazon? Means okay, 3 type or 2 types. So Which one one? for free and one for free and one for paid. Pay as you go. Amazon. 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 Eh, Amazon also same. The free trial and the pay as you go service. And trainer might be will get a one more subscription. But Hmm. I'm know about the two only, free and pay as you go. Amazon only two, yes. Pay as you go and free trial. Amazon can give you two different types of subscription, right? Hmm. One is basic and Hmm. another is enterprise. हाँ, okay. ठीक है? जब आप सर्विस, जब आप फ्री ट्रायल परचेज करते हैं, जहाँ पे साइन अप करते हैं, वहाँ पे दो ऑप्शन रहते हैं। एक बेसिक प्लान रहता है, एक इंटरप्राइज प्लान रहता है। बेसिक इन द सेंस यू वांट टू यूज योर सर्विसेज फॉर टेस्टिंग पर्पज एंड लर्निंग पर्पज। द वैलिडिटी ऑफ बेसिक प्लान और फ्री ट्रायल प्लान इज 1 year, करेक्ट? Correct. बट कभी भी AWS आपको क्रेडिट अमाउंट नहीं देता। मीन्स आई एम नॉट सेइंग हाँ, कि कभी भी नहीं देता, मतलब अमेजन के पास भी कूपन निकालते हैं, वो क्रेडिट अमाउंट correct. देते हैं आपकी वैलिडिटी के ऊपर कि आप कितने दिन से कस्टमर हैं उनके, और आपका पर्पस क्या है, आप लोगों को सिखा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, तो वो क्रेडिट अमाउंट देता है, ऐसा नहीं है। बट फ्री के ट्रायल के केस में वो क्रेडिट अमाउंट आपको नहीं देता, वो आपको वैलिडिटी देता है Correct. कि 750 आप, hours ऐसा कुछ देता है। हाँ, वैलिडिटी इंटायर ईयर्स की देता है, पूरे साल की हम्म, देता है। बट उसमें उन्होंने बहुत सारी लिमिटेशन लगा रखी है कि यू आर एबल टू यूज सिंगल वर्चुअल मशीन एंड 750 आवर्स तक महीने भर चलाओगे, हम कोई चार्जेस नहीं लेंगे। Correct है। 5 GB का डेटा आप अपने S3 बकेट में रखोगे, कोई चार्जेस नहीं लेंगे, राइट? आप डेटाबेस Correct. RDS चलाएंगे, 20 GB तक का डेटा रखेंगे, कोई चार्जेस नहीं लेंगे। हम्म, हर एक सर्विस के लिए, बीनेट के लिए, VPC के लिए 20 सबनेट्स आप तैयार कर पाएंगे, उसका कोई चार्जेस नहीं है। Correct. तो एज इट इज हम्म, वैलिडिटी उन्होंने 1 साल तक की दे दी, बट उसमें से लिमिटेशन लगा दिया। लिमिटेशन है। करेक्ट कि आप अगर 3 आप 5 इलास्टिक आईपी यूज कर सकते हो, समथिंग लाइक दैट। हाँ, ये है उसका। एग्जैक्टली 3 IP है आई थिंक। सो हाँ, हाँ। अब ये जो लिमिटेशन है ना, इस लिमिटेशन को अगर हम क्रॉस करते हैं, तो वो हमारा अकाउंट हमें चार्ज कर देगा कि यू हैव ऑलरेडी यूटिलाइज योर लिमिटेशन, और ये इतना ज्यादा आपने एडिशनल यूज कर लिया, तो प्लीज आप इसका पेमेंट कर दो। इज दैट करेक्ट? करेक्ट। Azure एंड गूगल क्लाउड, ये दो जो सर्विस प्रोवाइडर है ना, ये आपको क्रेडिट अमाउंट दे देते हैं और एक वैलिडिटी डिसाइड कर देते हैं क्रेडिट अमाउंट यूज करने की। इन केस ऑफ माइक्रोसॉफ्ट एज्योर फ्री ट्रायल अकाउंट की अगर हम थोड़ी सी क्वालिटी देखें या थोड़ा सा इसके अंदर की फीचर्स को देखें, तो दे प्रोवाइड अस 14,500 विच इज अप्लीकेबल फॉर 30 days। इज दैट करेक्ट? इनमें से जो करेक्ट। पहले आप यूटिलाइज कर लें, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप 14,500 विद इन 10 days के अंदर यूटिलाइज कर लिया, आपकी वैलिडिटी कोई मीनिंग नहीं है।
आपने पूरा अमाउंट बचा के रखा है, 30 डेज से 31 डेज हो गए हैं, तो आपके अमाउंट का कोई मतलब नहीं है। हम्म तो एक तरीके से बाउंडेशन दे दिया कि बंदा प्रैक्टिस करेगा ही करेगा, अदरवाइज हम्म उसके 30 डेज खत्म होने वाले हैं। और 30 डेज अगर खत्म हो गए तो आपके पास क्रेडिट अमाउंट 10,000 ही क्यों ना बचा हो, उसको आप कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पाएंगे। करेक्ट है। पे एज यू गो, एज पर द नेम सजेस्ट, इसमें आपको, इसको बोला जाता है ऑन डिमांड, राइट। आप हम्म जितना यूज करेंगे आप उतना पेमेंट देंगे, सिंपल सा फंडा है, जितना यूज करेंगे हम्म उतना पेमेंट करेंगे। MSDN है बेसिकली MCT के लिए, जो माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड ट्रेनर होते हैं उनको ये $100 कॉम्प्लीमेंट में 1 साल के लिए देता है हर महीने, क्योंकि MCT की वैलिडिटी होती है 12 महीने की, 12 मंथ की। सो ओके MSDN is a type of Microsoft development network which is help us to provide $100 every month। Microsoft अपनी तरफ से बैकएंड से $100 का क्रेडिट अमाउंट देता है हर महीने, हम्म और इस $100 का इस्तेमाल करके आप कोई भी सर्विस यूज कर लेते हैं। द बेनिफिट ऑफ एज्योर कि आपको क्रेडिट पे काम करना है, ना कि लिमिटेशन पे। ओके गॉट इट। क्योंकि एंड अगर आप अमेजन की बात करेंगे, आप हाई हम्म कॉन्फ़िगरेशन में जाते हैं, हाई कॉन्फ़िगरेशन में अगर आपने कोई मशीन परचेज कर ली, तो वो क्रेडिट वो पूरे हमारे लिमिट को लिमिट के अगेंस्ट जाएंगे, तो वो इमीडिएटली चार्ज करना स्टार्ट कर देगा। क्योंकि जब आप ऑन अमेजन के केस में जाते हैं, फ्री ट्रायल एलिजिबल में देखते हैं, तो 1 कोर का प्रोसेसर, 1 GB की रैम ही मिलती है बस, राइट। करेक्ट और है। आई थिंक 30 GB की हार्ड डिस्क मिलती है। ये हम्म कॉन्फ़िगरेशन आई डोंट थिंक सारी चीजों को मैनेज कर पाएगा। आप एडी इंस्टॉल करना चाहते हैं, आप IAS सर्विस लगाना चाहते हैं, अपाचे लगाना चाहते हैं, 1 GB हम्म रैम में तो कुछ होता भी नहीं। तो नहीं होता है, एज्यूर के करेक्ट है। बेनिफिट्स या गूगल क्लाउड के बेनिफिट्स क्या है कि आपके पास अमाउंट है तो आप 16 GB की रैम परचेज कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको देखना है कि कॉस्ट कितना पड़ रहा है उसको, 50 रुपीज पर आवर, 100 रुपीज पर आवर, वो आपकी हेडेक है कि आप उसको कैसे हैंडल करते हैं। इज दैट करेक्ट? करेक्ट। सो अभी जो $100 आपको मिल रहा है यहाँ, सो इट विल क्रेडिट फॉर द नेक्स्ट नेक्स्ट मंथ और नहीं, ये लैप्स हो एवरी, जाएगा नेक्स्ट मंथ? हाँ एवरी मंथ, नहीं, 18 एवरी टू मंथ 18 यू विल गेट, साइकिल है। एवरी मंथ यू विल गेट $100, दैट इज ओके। हाँ मान लो कि एवरी, आपने सिर्फ $70 ही यूज किए इस मंथ, सो द 25 $30 विल क्रेडिट फॉर द नेक्स्ट एड इन द 100 प्लस 130 हो जाएगा नहीं 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 कि नहीं, नहीं? कैरी फॉरवर्ड, लेफ्ट, कैरी फॉरवर्ड कैरी नहीं होगा। फॉरवर्ड नहीं होगा, लैप्स हो नहीं जाएगा, नहीं, ओके। हाँ, आपने कुछ भी नहीं यूज किया तो अगले महीने जैसे ही वो साइकिल आएगी, जो भी डेट है, उस केस में आपका जो अमाउंट है पुराना वाला गायब होकर के नया $100 आपको दिखने लगेगा। गॉट इट। एंड $100 से ऊपर आप उसको यूज करोगे तो यू हैव टू चार्ज समथिंग लाइक दैट? नहीं 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 नहीं, एक्चुअली MSDN एक ऐसा अकाउंट है जिसमें आपको क्रेडिट कार्ड की इन्फॉर्मेशन नहीं देनी होती। हाँ ओके। आप कोई भी कार्ड की इन्फॉर्मेशन नहीं देंगे, मींस इट मींस दैट वो कॉम्प्लीमेंट आपको दे रहा है ना, कि आप आपके MCT होने पे, कि आप अपने हम्म हमारी एजूर की सर्विसेज को यूज करो, और एंड यू जस्ट गिव अस अ फीडबैक कि आप क्या और चेंजेस करना चाहते हैं, तो जस्ट काइंड ऑफ R&D। तो इसमें हम्म कोई भी क्रेडिट का अमाउंट, क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड लगाने की जरूरत नहीं होती। एंड अगर आपने 1 महीने के पहले, मान लीजिए 30 डेज की वैलिडिटी होती है, और आपने $100 जो है 15 दिन में यूज कर लिया है, ठीक है, हम्म तो वो आपके अकाउंट को डिसेबल कर देगा नेक्स्ट 15 डेज के लिए, क्योंकि जो अगली साइकिल आएगी वो 15 दिन बाद आएगी। गॉट तो इट। 15 डेज के लिए वो डिसेबल कर देगा, अगली 15 डेज के बाद आपके अकाउंट को फिर से वो रीएक्टिवेट कर देगा। जैसे ही क्रेडिट अमाउंट आया वो रीएक्टिवेट कर देगा। हम्म ओके डन। डन। नेक्स्ट, another important point related to Azure services is थोड़ा सा डेटाबेस वगैरह के बारे में जान लेते हैं। आई एम टॉकिंग अबाउट रीजियन हम्म एंड zones. So what do you think about the regions and zone? ओके सो region is a separate geography location. So Mm-hmm. whenever any data is going to like database sorry data center, they are going to create or something like that, might be the North Virginia region or something. So different the separate geography region is there.
And the zone is nothing but the ability zone. Might be the three in India. Might be they launched the one data center in the Mumbai, and Hmm. the three different location they create one three data center in between in a India region. Okay. What are the importance of region and zone? So you will launch your service according to your age. So might be that your client is a North Virginia region, so you no need to launch in the India side. Better to launch in the North Virginia side only, or whatever location. Um, so they will provide the the performance is very high on that time. And the zone means Mhm. ability zone is going to create if you want to high availability site. So no need to launch in the service in the single ability zone. You have to launch in the three different ability zone. Might be the one ability zone is down. So your application will serve the data in the other zone as well. You're talking about the latency. Latency, not latency, because what happened, one of the recently we used Kubernetes service, and what happened, they configured the Kubernetes service in one zone, ability zone. Okay. They are, so Okay. whenever any pod is going to launch in the single ability zone, so what happened, the Hmm. entire zone was down in the AWS side. So there is some impact in the 3 hours. So they provide the North Virginia, there is a 3 or 4 zones. So they clearly mention, okay, you have to, whenever you're going to launch your service, you have to choose the one or two or three ability zone. But our team is only launch mention, okay, this is the one zone going to create. And later the service was impacted because the server is not going to launch in the other ability zone side, because they choose okay, this zone only, Z1 zone only is going to launch the services, and this zone was down. So I'm talking about the fault tolerance and high availability side. It's Okay. So do we need to pay additional amount if we talk about the high availability? not really, because this is the free. You can launch the service in a different zone. They by default they provide the three zones, so you can launch your service in the three zones. You can just choose the three zones. So the AWS is able to launch any of the server whenever the auto scaling is happened, automatically is going to launch in the one zone in the one server, second zone is the second server. So for the zone service, you no need to pay extra amount. Whatever your infrastructure is launched on that area, so only pay Hmm. to the infrastructure side. I I'm correct? Let me correct you. ठीक है, ऐसा Okay. कुछ भी नहीं है. If you want to Okay. enhance a single percentage of fault tolerance, you have to pay amount. Okay. ठीक है. Actually, the meaning of region and zone is basically, for example, in case of Microsoft Azure, not only there, in case of Microsoft Azure, अगर हम किसी भी provider की बात करें, तो they give us option to set up our resources by selecting the region and zone, चाहे वो Google Cloud हो, Amazon Cloud हो, या फिर Hmm. हमारा Microsoft Azure हो. This Okay. is globe, और यहाँ पे ना multiple zones हैं, you know very well about, right? Multiple Hmm. Hmm. region, multiple zones. So we should know about the actual gap between region and zone. These all are the data center which is established by provider. ये सभी क्या है? Data centers हैं जो Hmm. Azure ने या कोई भी cloud provider ने हमें provide कर रखे हैं. And they categorize in two different part. जैसे Hmm. these all are the zone which is available in location of USA, right? Hmm. तो USA क्या हो गया हमारा? रीजियन हो गया ना. यूएस Correct. हमारा क्या हो गया? रीजन हो गया. Region. अब Region हो गया. इसके अंदर छोटे छोटे जो बॉक्सेस है ना, छोटे छोटे जो डेटा सेंटर है ना, दीज ऑल आर कंसीडर्ड एज ए Zone. जोन्स. सो जोन्स में क्या क्या हो सकते हैं? इट मे बी एज्यूर के अकॉर्डिंग सेंट्रल यूएस हो सकता है, Hmm. वेस्ट यूएस हो सकता है, ठीक है, Hmm. Hmm. वेस्ट यूएस 2 हो सकता है, ईस्ट यूएस हो Okay. सकता है. तो ये जो लोकेशन है ना, वेस्ट यूएस, सेंट्रल यूएस, वेस्ट यूएस और ईस्ट यूएस, Hmm. दिस इज कंसीडर्ड एज ए जोन. Okay. ये पूरा का पूरा लोकेशन डिसाइड कर दिया एज इट इज. यहाँ पे बात कर लेते हैं.
This is our AP. हम्म ठीक है, एशिया हम्म पैसिफिक। और एशिया पैसिफिक के अंदर आपके पास मल्टीपल जोन्स अवेलेबल हैं। हम्म ठीक है, सेंट्रल इंडिया हो गया, एंड जापान इज आल्सो अ पार्ट ऑफ दुबई हो गया। दीज ऑल हम्म आर द डेटा सेंटर लोकेशन। इंडिया में ही दो हैं, साउथ इंडिया एंड ओके सेंट्रल इंडिया। ओके नाउ दिस इज द एक्चुअल डेटा सेंटर। जो ये जोन होते हैं ना, ये आपके एक्चुअल डेटा सेंटर होते हैं, हम्म एक्चुअल फिजिकल डेटा सेंटर। ओके Region is the collection of zone. Region is collection of zones. हम्म ये जो combination of zone है ना, which is considered as a region. Is that clear? ओके या इट्स And क्लियर why it is important? Question is why it is important? क्यों हर एक cloud provider जो है ज्यादा से ज्यादा region and zone provide करने की कोशिश कर रहे हैं? Because हम्म by default, as per the SLA of Microsoft or Amazon, they give us a 95.99% of fault tolerance. हम्म ठीक है, हम्म they provide us 95.99% fault tolerance बिना किसी एडिशनल फॉल्ट टॉलरेंस के, बिना किसी एडिशनल सेटिंग्स के आपको इतने परसेंट का फॉल्ट टॉलरेंस मिलता है। ओके We have option to increase it up to 99.9999% of fault tolerance आप इंक्रीज कर सकते हैं। बट जब आप इंक्रीज ओके करने की बात करते हैं, फॉल्ट टॉलरेंस इंक्रीज करने की बात करते हैं, आपको हम्म अच्छा खासा अमाउंट पे करना होता है। ओके कोई भी प्रोवाइडर, अब जैसे आपने अमेजन का एग्जांपल दिया कि अमेजन के अंदर हम्म हमने रीजन सेलेक्ट कर लिया, कोई सा भी रीजन सेलेक्ट कर लिया, हम्म एंड यू वांटेड टू सेट अप योर कुबरनेटिस सर्विसेज या कोई भी सर्वर आप इस्टेब्लिश करना चाहते हैं, तो जो हम्म उनके अंदर जोन है ना, वो दे ऑल आर द लोकेशन। आपने रीजन सेलेक्ट हम्म किया, उसके अंदर जो जोन्स है, आपने नॉर्थ वर्जीनिया सेलेक्ट किया, राइट? हम्म करेक्ट तो हम्म नॉर्थ वर्जीनिया के अंदर आप देखेंगे कि 6 से 7 डिफरेंट जोन्स मिल जाएंगे। हम्म ठीक है, और उन जोन्स के अंदर आप अलग सबनेट लगा सकते हैं, अलग रिसोर्सेज लगा सकते हैं, और एक्चुअली द जोन्स आर कोरिलेटेड टू द फिजिकल डेटा सेंटर। आप उन हम्म फिजिकल डेटा सेंटर का इस्तेमाल करके अपनी सर्विसेज की कैपेसिटी यानी फेल ओवर को, फॉल्ट टॉलरेंस को इंक्रीज कर सकते हैं। ओके जो नॉर्मल आपका 95.99% है ना, आप उसको 99.999% तक कन्वर्ट कर सकते हैं। बट अब ओके हर एक फेल ओवर का आपको चार्जेस देना पड़ेगा। ओके ठीक है, basically the usage of our region and zone, it is used for fault tolerance पहला, it is used for disaster recovery दूसरा, it is used for replication। हम्म तीनों सर्विसेज एक तरीके से लग रही हैं, बट काफी ज्यादा गैप है इन तीनों के अंदर। फॉल्ट हम्म टॉलरेंस, डीआर, एप्लीकेशन, ये तीनों सर्विसेज हमारी हेल्प करती हैं टू प्रोटेक्ट द इन्वायरमेंट, हमारे रिसोर्सेज को प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं। बट इनका अगर इंटरनली टास्क देखा जाए ना, so each and every task are different to each other. हम्म Is that clear? यस Any question about the region and zones? नो आई एम गुड Great. अच्छा एक चीज बताइए जैसे AWS में whenever we are going to select like नॉर्थ वर्जीनिया so वो एक अलग ही पैनल ओपन हो जाता है एंड यू कैन लॉन्च योर सर्विस डिफरेंट डिफरेंट मतलब उसमें कर सकते हैं। यहाँ पर जब आप एज्योर पे लॉन्च करते हैं तो आप सेम पेज पे ही आप डिफरेंट डिफरेंट रीजन को यूज कर सकते हो, मतलब कि जैसे यूएस वेस्ट हाँ में लॉन्च कर दी है कुछ भी कर दी तो वो पूरा हाँ वहीं दिखता है। एंड अगर मैं जैसे 10 की सीरीज का कोई आईपी ले रहा हूँ एक हाँ। रिसोर्स ग्रुप के अंदर एक 10 की सीरीज का एंड आई वांट टू लाइन कि मैं अभी नया एक रिसोर्स ग्रुप बनाऊं जस्ट लाइक दे प्रोवाइड द वर्चुअल क्लस्टर टाइप का कि मैं दूसरा भी अगर तो सेम रेंज का अगर मैं यूज करना चाहूँ तो वो नहीं करने देता है। तो अगर आप डिफरेंट रीजन में तो भी नहीं करने देता है यहाँ ऐसा? नहीं 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 नहीं, अगर आप एक्चुअली हाँ हाँ कुछ ना कुछ तो डिफरेंस ये लोग लॉन्च करते हैं। एक्चुअली अमेजन के अंदर आप
जब आप सर्विसेज तैयार करते हैं ना, तो आपका पूरा पेज एक लोकेशन को डेडिकेट हो जाता है। हाँ, अब वो मैं जो वहाँ भी सर्विसेज करेक्ट। बनाएंगे, क्योंकि अमेजन के पास दो तरीके की सर्विसेज है, ठीक है। हम्म एक है सर्विसेज डेडिकेटेड टू द लोकेशन और एक है ग्लोबल सर्विसेज। हम्म व्हाट अबाउट ग्लोबल सर्विसेज? ग्लोबल सर्विस S3 होगा, जो हम हम्म मतलब ऐसा नहीं कि उसको वो करना है, वहाँ एज सेट कर सकते हैं कि हम्म मैं S3 बकेट एक एज पे लॉन्च कर रहा हूँ, लेकिन दिस इज द ग्लोबल सर्विस। सो whenever you are going to launch the global service, in the right hand corner you see this is the global service, and this is you no need to choose the region over there। लेकिन जब आप बकेट क्रिएट करते हैं तो वहां पर आप दे सकते हो, सो यू कैन एक्सेस एनीवेयर, देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन। सो ग्लोबल सर्विस एंड VM जो है वो ग्लोबल सर्विस नहीं है, वो आपका रिस्ट्रिक्टेड एरिया का डेडिकेट। ही है कि आप, हम्म हाँ डेडिकेटेड है, वो आप हम्म करते हो। सो वहां पर क्या होता है कि जैसे मैं एक डेडिकेटेड सर्विस लॉन्च किया है तो 10 की सीरीज का कर सकता हूँ, and अगर मैं उसी को लेके अगर स्पेसिफिक मुंबई में आ गया, सो आई विल एबल टू लॉन्च द 10 सीरीज सर्विस, वो वहां पर देता है। यहाँ पर जब मैं लॉन्च करता हूँ 10 सीरीज का, अगर दो डिफरेंट रीजन में, तो बोल देता है कि वो रिसोर्स ग्रुप को ऑलरेडी ओवरलैप कर रहा है, ऐसा, या मैं कोई मिस्टेक कर रहा हूँ कहीं लॉन्च करने में? नहीं 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 नहीं। अगर आपने लोकेशन चेंज कर दी, नो मैटर आपने सेम रिसोर्स ग्रुप सेलेक्ट कर दिया है, बट आपने लोकेशन बदल रखी है, तो डेफिनेटली यू आर एबल टू क्रिएट। ओके, ठीक है, हम क्रिएट कर ठीक सकते है। हैं अगर आपने लोकेशन सेम रखी है, बट हम्म सॉरी, रिसोर्स ग्रुप सेम रखा है बट लोकेशन अगर डिफरेंट है, तो डेफिनेटली वी आर एबल टू डू दैट। ओके, गॉट इट। ओके, next let's talk about the importance of, we have already discussed about the importance of our region and zone, correct? करेक्ट। अगला जो important point है, which is really helpful for us, manage and configure cloud services. The meaning of manage and configure cloud services is correlated to we are able to manage the Azure services using various part. मल्टीपल वे हैं हमारे इस एज्यूर सर्विसेज को यूज करने के लिए, लाइक एज वी कैन यूज इट यूजिंग एज्योर पोर्टल, ठीक है, विच इज कंसीडर एज ए GUI, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के थ्रू इसको हैंडल कर सकते हैं। दूसरा, it gives us option to manage the services through Cloud Shell. Cloud Shell categorized in two different part, means it contain the feature of two different part. One is Bash and another is PowerShell. ओके, Azure will give us option to manage the services through CLI as well. Azure will provide you option to use ARM as well. आप अपने एक सिंगल सर्विस को इनमें से किसी भी मेथड के जरिए लॉन्च और मैनेज कर सकते हो। Is that clear? यस। Now, आप एक क्वेश्चन था मेरे को, जैसे आप आर्म टेम्पलेट का एक लेते हैं, जैसे कि देयर इज द ऑप्शन कि यू कैन एक्सपोर्ट द आर्म टेम्पलेट, ठीक है, hmm, कि मैंने अगर 2-3 रिसोर्स बना लिए हैं, वीनेट बना लिया है, उसके ऊपर कोई EC2 लॉन्च कर दिया, कुछ भी कर दिया, तो आई एम एबल टू एक्सपोर्ट, तो एक्सपोर्ट हो गया, एंड नेक्स्ट hmm, टाइम इफ आई वांट टू delete or terminate the services inside the portal and whenever is required, so अभी यहाँ पर जैसे कस्टम डिप्लॉयमेंट का ऑप्शन है आपके Azure पे, सो आप hmm, पैरामीटर फाइल और टेम्पलेट को चूज करते हो, तो आपने चूज किया एंड वेन एवर यू आर गोइंग टू क्लिक कि भैया अब क्रिएट हो जा,
दोबारा। सो वो डिपेंडेंसी वाला एक इशू देता है यहाँ कि पहले या तो वीपीसी क्रिएट हो, मतलब रिसोर्स ग्रुप लेवल पे वो एक्सपोर्ट तो हो जाता है, लेकिन फिर हम जब लॉन्च करते हैं उस टाइम इट्स गेटिंग एरर। तो वहाँ कोई ऐसा ऑप्शन होता है कि नहीं, मैं दिस इज द डिपेंडेंसी, फर्स्ट डिपेंडेंसी ये क्रिएट होगा, सेकंड ये क्रिएट होगा, ऐसा? जैसे कि एडब्ल्यूएस केस में क्या है, स्टैक बन जाता है। तो क्लाउड फॉर्मेशन अगर हम यूज करते हैं, यू कैन डिटेच द स्टैक एंड अटैच द स्टैक। व्हेनेवर यू गोइंग टू अटैच द स्टैक, इट ऑटोमेटिकली लॉन्च ऑल द सर्विसेज। इट विल डिटेक्ट, ओके दिस इज द डिपेंडेंसी, ये मैं क्रिएट कर दूंगा, इसके बाद ये क्रिएट करूंगा, ऐसा होता है। यहाँ पर whenever I'm trying to launch export and जब नेक्स्ट टाइम मैं जब इंपोर्ट करने जाता हूँ कि भाई अब इससे लॉन्च करूँ, तो वो डिपेंडेंसी का एक एरर देता है कि पहले वीपीसी आना चाहिए या इसकी डिपेंडेंसी ये सबनेट आना चाहिए। वैसा कुछ ऑप्शन होता है क्या, कि मतलब कि आप कैसे एक्सपोर्ट करोगे प्रॉपर वे में, या क्या है? नहीं, देखो दो चीजें होती हैं कि एक तो आपने बीपीसी पहले से क्रिएट कर रखा है, राइट। एक होता है कि हम्म। आप सर्विस के साथ बीपीसी तैयार कर रहे हैं जिसमें आपने सारी स्क्रिप्ट जो भी कोड है ना वो आपने मेंशन कर रखा है, एआरएम टेम्पलेट के अंदर सारी चीजें मेंशन कर रखा है। दो तरीके के टेम्पलेट होते हैं एआरएम टेम्पलेट, एक कस्टम हम्म। और एक आपका मीन्स क्रिएट फ्रॉम स्क्रैच। जब आप बेस से हम्म। स्टार्ट करते हैं उसमें सारी चीजें आपको मेंशन करनी पड़ेगी। कस्टम के केस में क्या होता है कि यू जस्ट नीड टू एडिट इट, बहुत सारे टेम्पलेट्स हम्म। ऑलरेडी अवेलेबल है, उनके अंदर जाके आपको चेंजेस करना पड़ेगा एंड यू जस्ट नीड टू लॉन्च इट। हम्म। लेकिन मेरा क्वेश्चन है कि जैसे आपने एक रिसोर्स ग्रुप में आपकी सर्विसेज चल रही हैं, जो उसकी हम्म डिपेंडेंसी सर्विस है, एक पर्टिकुलर एक्स एप्लीकेशन है, उसका हम्म रिसोर्स ग्रुप में एक एक्स सर्विस के डिपेंडेंसी मॉड्यूल इंस्टॉल्ड है, आइदर उसमें हम्म डेटाबेस भी है, जो भी है, मतलब 5-6 कंपोनेंट है, एंड देयर इज द हम्म ऑप्शन कि यू कैन जस्ट रिसोर्स ग्रुप को राइट क्लिक करो और एक्सपोर्ट कर लो पूरा आर्म। तो मैंने एक्सपोर्ट कर लिया, एक्सपोर्ट आपके हम्म पास आ गया, एंड फ्यूचर में अगर आप लॉन्च करने जा रहे हो तो आपने सेम नाम का एक रिसोर्स ग्रुप क्रिएट किया, एंड जब आप आर्म को इंपोर्ट करोगे वहाँ, तो वो डिपेंडेंसी का एरर देने लगता है उस टाइम। तो करेक्ट मतलब करेक्ट कि मैं, करेक्ट। हाँ। क्योंकि आप रनिंग सर्विसेज का जब आप एंड वो आप टेम्पलेट निकालते हैं ना तो उसमें कहीं ना कहीं उसकी इंफॉर्मेशन भी आ जाती है, ओके। उस सर्विस की इंफॉर्मेशन भी आ जाती है। और जब आप लॉन्च करते हैं अगर कोई भी गलती से मिस्टेक से भी अगर एक भी पॉइंट रह गया, एक भी कोड रह गया पुराने वाले का, तो वो आपको डिपेंडेंसी का एरर दिखा देगा। ओके, फाइन। So whenever we are going to on that level, so please show me कि okay, what is the right way to हाँ export and हाँ, how to नहीं नहीं, उसके लिए तो थोड़ा सा टाइम लगेगा क्योंकि फर्स्टली वी जस्ट नीड टू नो अबाउट द जीयूआई कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, करेक्ट तब करेक्ट। हम उसमें हाँ। हाँ। आसानी से समझ सकेंगे कि हाँ ये जीयूआई के केस में आपने पढ़ा था, ये रिसोर्स ग्रुप था, ये आपका कंटेनर था, ये आपका बीपीसी था, तो वो सारी चीजें आसानी रहेगी हमें सीएलआई के केस में समझने के लिए, एआरएम टेम्पलेट के केस में समझने के लिए, राइट। गॉट इट। ओके। सो दिस इज द बेसिक इंफॉर्मेशन अबाउट आवर क्लाउड टेक्नोलॉजीज। में से सारी चीजें हमने डिस्कस कर ली हैं लगभग, दीज ऑल आर द बेस। तो प्लीज लेट मी नो अगर अब यहाँ तक कोई क्वेश्चन या कोई डाउट आया तो। नहीं नहीं, आई एम गुड फॉर दैट वन। AWS से, अच्छा ये से यहाँ पर AWS CLI का एक क्वेश्चन था कि जब मैं हम्म AWS पे AWS CLI बनाता हूँ तो एक रोल या यूजर बनाएंगे, तो उसका जैसे मान लो किसी ने ना टोकन सर्विस इनेबल कर दी कि यूजर नेम पासवर्ड के साथ यू हैव टू पुट द टोकन एज वेल। सो देयर इज ऑप्शन कि AWS CLI को मैं डाउनलोड मतलब इंस्टॉल कर लिया लोकल पे, एंड 3 पैरामीटर्स वहां पर दे दिया, एक टोकन का दे दिया, एक्सेस का दे दिया, सीक्रेट की का दे दिया, एंड आई एम इजी टू रन अवर स्क्रिप्ट्स ओवर देयर, कि करेक्ट। फ्यूचर में अगर कुछ होगा तो मैं उसको रन करूंगा। यहाँ पर जैसे मैंने देखा है अभी एजेट लॉगिन करके करते हैं, तो वो जैसे लॉगिन हो जाता है यू कैन इजी टू रन योर स्क्रिप्ट्स। तो यहाँ पे भी ऐसा कोई ऑप्शन है क्या कि मैं जैसे कि फ्यूचर में मेरे को जेंकिंस यूज करना है या कोई भी XYZ सर्विस यूज करना है कि ये इसका एक्सेस की, ये सीक्रेट की, ये इसका टोकन रहेगा, ये इट इज नॉट गोइंग टू एक्सपायर, यू कैन ऐड इन द वन प्रॉपर्टी फाइल एंड somebody हम्म want to hit your system this particular script, तो ऑपरेशन विल परफॉर्म। तो ऐसा होता है कि नहीं, तो मैं हर बार एजेट लॉगिन से ही आपको जाना होता है? नहीं, यहाँ पे आपको एजेंट लॉगिन से जाना होगा और प्लस आपकी जो टेनेंट आईडी है ना, टेनेंट आईडी के थ्रू हम्म। आप एंट्री करेंगे। ओके, जो मतलब आपके वैसा नहीं। यूजर, ओके। हाँ। नहीं वो यहाँ पे सेक्रेट वगैरह का ऑप्शन नहीं है, सेक्रेट का ऑप्शन है जो वो बेसिकली टू सिक्योर द सर्विसेज।
जो हमारी हम्म सर्विसेज चल रही हैं उनको सिक्योर करने का काम करता है। यहाँ पे लॉगिन के लिए आपको एजी का ही यूज करना पड़ेगा। ओके, गॉट इट। ठीक ठीक है, so this is the basic ठीक है। information about our cloud technology, and now we will move ourselves to the Azure portal and discuss about the Active Directory services, because the पहला मॉड्यूल जो है वो हमारा Active Directory services से रिलेटेड है। ठीक गॉट है। इट। सो एक्टिव डायरेक्टरी में आई हैव अ लिटिल बिट कॉन्सेप्ट, बट मेनली क्या होता था कि हमारे पास आईडी एक्टिव डायरेक्टरी टीम ही है। अभी सेम तक ही जितने होती भी है मैंने सर। काम किया तो वो ही मैनेज करती है। सो यू कैन ट्रीट मी एज ए स्क्रैच I से कि आप। will give you the proper comparison between हम्म, on-premises AD to Azure AD, क्योंकि दोनों, अगर on-premises का कॉन्सेप्ट क्लियर है तो डेफिनेटली ये थोड़ा सा आसान हो जाएगा हाँ। समझने के लिए कि Azure AD ओके। किस तरीके से टास्क परफॉर्म करता है और क्या क्या सर्विसेज ये हमें प्रोवाइड करेगा। श्योर। क्लियर? हाँ, क्लियर। ठीक है, so uh, can we take a small break, just 15-minute break and या connect again? हम्म? या श्योर, आप बिल्कुल। गो थ्रू कर लो तब तक ये जितनी सर्विसेज डिस्कस की हैं। श्योर श्योर, ओके, थैंक यू। This conference will now be recorded. Then another important part is Azure AD. ये आर्किटेक्ट या एडमिनिस्ट्रेटर या डेवलपर या डिजाइनर या जो भी डेवऑप्स इंजीनियर रहते हैं, दिस इज द कॉमन सर्विस विच इज एप्लीकेबल फॉर ईच एंड एवरीवन। नो मैटर ओके। आप कौन सी एक्टिविटी को परफॉर्म कर रहे हैं, वो सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। कॉन्सेप्ट ऑफ एज़्योर AD, इसके लिए थोड़ा सा बेस पे हमें जाना पड़ेगा। बेस इन द सेंस आई एम टॉकिंग अबाउट द ऑन प्रेमाइसेस AD। सो जस्ट वांटेड टू ओके। नो अबाउट व्हाट डू यू थिंक अबाउट द ऑन प्रेमाइसेस AD? ऑन प्रोमाइस है, बिकॉज एडी के बारे में मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम विच इज इंट्रोड्यूस्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट, ठीक है, इन ओके। ईयर ऑफ 1995। उस टाइम पे जो सर्वर था अपने पास उसको हम एंटी सर्वर बोलते हैं, और ये माइक्रोसॉफ्ट का पहला ऑपरेटिंग सिस्टम था जो NTFS फॉर्मेटेड था। ठीक है, ओके। ठीक है। एंड नाउ इट इज वी हैव एन नंबर ऑफ सर्वर प्रोडक्ट। एंटी सर्वर से इन्होंने स्टार्टिंग की थी, ठीक है, इन ईयर ऑफ ओके। 1995। और आज की डेट में अपने पास अगर हम बात करें तो 2000, 2003 and 2K8, 2K12, 2016, 19 एंड 2022, ये सभी प्रोडक्ट हैं माइक्रोसॉफ्ट सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम के, विच ओके। इज अ कॉमन। इसी को हम एवरग्रीन टेक्नोलॉजी बोलते हैं, बिकॉज आज की डेट में हर एक ऑर्गेनाइजेशन, छोटा सेटअप है बड़ा सेटअप है, दे मस्ट नीड टू इन्वॉल्व द सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम। ओके। ठीक है, वाई इट इज इम्पोर्टेंट, बिकॉज इतने सारे क्लाइंट्स रहते हैं अपने पास, इतने सारे इंजीनियर्स रहते हैं, उनके सिस्टम को अगर आपको कंट्रोल करना है ना, उनके सिस्टम को अगर आपको मैनेज करना है ना, तो ओनली द सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम कैन हेल्प अस। ओके। इट इज रिस्पॉन्सिबल टू मैनेज ऑल टाइप्स ऑफ प्लेटफॉर्म। विंडोज है, लाइक एज अ विंडोज 7, 8, 10, 11, या फिर मैक मशीन है, या फिर लिनक्स मशीन है, ठीक है, या फिर कोई भी डिवाइसेस है, लाइक एज इवन प्रिंटर को भी ये कंट्रोल करने का काम करता है। ओके। बायोमेट्रिक डिवाइस आपके पास लगा रखी है तो बायोमेट्रिक डिवाइस को भी ये कंट्रोल करेगा। सो दैट इज द रीजन कि ये कॉमन सा जो
सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जिसके अंदर बहुत सारी सर्विसेज रहती हैं. These services are responsible to manage our client resources. These services are responsible to manage our means client operating system plus devices. Okay. होता क्या है, इसके अंदर बहुत सारी सर्विसेज रहती हैं. द वन ऑफ इम्पोर्टेंट सर्विस कॉल्ड एक्टिव डायरेक्टरी. ठीक है. Mm-hmm. Active Directory is a core important service of server operating system because with the help of this particular service, we are able to control our resources. Means I'm talking about the clients. इन सभी client को manage करने के लिए Active Directory can help us. Active Directory can help us to create a users. ये हमें ग्रुप बनाने का ऑप्शन देता है. ठीक है. ये हमें Mm-hmm. OU बनाने का ऑप्शन देता है. और इन सभी सर्विसेज के जरिए, ठीक है, इन सभी सर्विसेज के जरिए आप अपने रिसोर्सेज को, आप अपने सर्विसेज को आसानी से मैनेज कर सकते हैं. Okay. Okay. Got it. एज इट इज ओवर एज्योर पोर्टल, हम यहाँ पे किसी क्लाइंट को नहीं मैनेज करते हैं, बट एज्योर एडी की अगर हम बात करें तो एज्योर एडी रिस्पॉन्सिबल टू परफॉर्म लॉट्स ऑफ टास्क. दिस इज एज्योर एडी, एज्योर पोर्टल, सॉरी. In Azure portal, we will find one option which is considered as a Azure Active Directory. The work of Azure Active Directory responsible to manage different platforms. Office 365 को ये मैनेज करेगा, Microsoft Intune को मैनेज करेगा, Azure Mm-hmm. Virtual Desktop को मैनेज करेगा, और साथ ही साथ Azure की सर्विसेज को भी ये मैनेज करने का काम करता है. Office 365, MS Intune, AVD and Okay. Azure सर्विसेज. आप एक Azure AD के जरिए इन सभी को कंट्रोल करते हैं, मैनेज करने का काम करते हैं. Let's talk about the Office 365. As per the name suggest, यहाँ से क्या हम तैयार करते हैं, मेल बॉक्सेस तैयार करते हैं. यहाँ से हम टीम्स को मैनेज करते हैं, यहाँ से हम शेयर पॉइंट को मैनेज करते हैं. ठीक है. Mm-hmm. And we talk about Intune, so it is used for the enroll devices. Okay. Like any platform you can control. MDM और MAM दो सर्विसेज मिलती हैं, MDM के नाम से और MAM के नाम से. MDM क्या होता है, माइक्रोसॉफ्ट सॉरी मोबाइल डिवाइस मैनेजमेंट और मोबाइल एप्लीकेशन मैनेजमेंट. AVD क्या है, ये है VDI सॉल्यूशन. ये हमारा VDI सॉल्यूशन है जिसमें हम Azure वर्चुअल डेस्कटॉप को प्रायोरिटी देते हैं. अब Azure की बात करें तो इसके पास n नंबर ऑफ सर्विसेज है. वो आपका VM हो सकता है, वो आपका नेटवर्क हो सकता है VNet, और ये आपका स्टोरेज सर्विसेज हो सकती है. सिंगल Azure AD यूजर, ये भी हमें यूजर्स प्रोवाइड करता है. इन यूजर के जरिए आप अपने Office 365 का पोर्टल, Intune का पोर्टल, Azure वर्चुअल डेस्कटॉप का पोर्टल और Azure की सर्विसेज को आसानी से कंट्रोल और मैनेज कर पाएंगे. That is why it's really important for our services. If we talk about the components, so components में क्या क्या मिलता है हमें, users management. सबसे पहला जो point है वो है user management. Plus it gives us option of licensing. It gives us option of to manage the hybrid setup. Okay. आप इसके जरिए Azure AD के जरिए आप आसानी से it can also perform the task of migration or synchronization. Okay. In other words, we can say that it is used for the security, multi-factor authentication. It will provide option of SSPR. These are the core components. बाकी जो component है वो हम internal देखेंगे इसमें पोर्टल के ऊपर. Mm-hmm. These components are responsible to manage the services of our Azure with the help of Azure AD or Azure Okay. Active Directory Services के थ्रू हम इसको कंट्रोल करेंगे. Now,
अगर हम दोनों के बीच में कंपेयर करें ना, तो जो भी टास्क आप परफॉर्म करते हैं, टास्क इन द सेंस जो भी आप अपने क्लाइंट में एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं, ऑल एक्टिविटी मैनेज बाय द सर्वर Okay. एज इट इज ओवर एज्योर पोर्टल। एक एज्योर पोर्टल के जरिए मल्टीपल पोर्टल्स को कंट्रोल किया जाता है। मल्टीपल पोर्टल को आप सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं, एंड पॉइंट प्रोवाइड करते हैं, एमएफए प्रोवाइड करते हैं, एंड एसएसपीआर के भी ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। So it's our responsibility as an administrator, we should know about the each and every point properly. हमें इसको आसानी से सारी चीजें मैनेज करना पड़ेगा। So I'm going to move ourselves to the portal. Over a portal, let me show you how it's look like. This is my free trial account. अभी हमने free trial account create किया था recently and created few services. इस पोर्टल के ऊपर यू नो दैट मल्टीपल सर्विसेज, मोर देन 3500 सर्विसेज आर अवेलेबल पोर्टल के ऊपर, एंड the one of important service is security. Under the Mm-hmm. security, we are able to find n number of options are available. I'm going to start from the Azure AD. Okay. This is the panel, right? और Azure AD के पैनल पे we are able to find n number of options. बेस से स्टार्ट करते हैं, ओवरव्यू पे। अब देखिए यहाँ पे बेसिक इंफॉर्मेशन के अंदर क्या क्या दिखाई पड़ रहा है। नेम दिखाई पड़ रहा है, टेनेंट आईडी दिखाई पड़ रही है, प्राइमरी Hmm. डोमेन, लाइसेंस आपके पास कौन सा है, डिवाइसेस कौन सी कनेक्टेड है, एप्लीकेशन कितने आपने जोड़ रखा है, एंड ग्रुप्स और यूजर्स कितने अवेलेबल है। ये सारी इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कर रहा है। बाय Hmm. यूजिंग द टेनेंट आईडी आप अपने इस पोर्टल को CLI के थ्रू ऑन प्रोमाइसेस से जोड़ सकते हैं, किसी एप्लीकेशन से जोड़ सकते हैं, किसी अदर पोर्टल के साथ एसोसिएट करना है तो इस टेनेंट आईडी के जरिए आप मैनेज कर पाएंगे। व्हाट डू यू थिंक अबाउट टेनेंट आईडी? टेनेंट नॉट आईडी। Okay. Tenant is whenever we are going to create a main account, we will provide one sub account for that one, respective. So the just like AWS, we have an organization account. So we will create a multiple organization account inside the one main account. You, What are the benefits? so you can segregate your services, and so you can segregate your services, and no need to launch the new account, but the invoice is coming on the same panel. The just like a child account, parent and child concept. We can say that we can use our Azure Active Directory user to divide the workload as well. Yes. Okay, let me give you one example. Base example की बात करते हैं, how to use Azure Active Directory to manage the Azure portal services. किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, फॉर एग्जांपल दिस इज आवर रूट अकाउंट, Mhm. and as an administrator we are responsible to manage the root services. A number Mm. of resources are available. You establish up to more than 25 virtual machines. We establish our network. We set up our storage. ठीक है, ये बहुत सारी सर्विसेज आपने परचेज कर ली, एंड अनफॉर्चुनेटली यू आर अ सिंगल पर्सन टू हैंडल दीज सर्विसेज। आपके पास Mhm. इतने ज्यादा टिकट्स हैं, आपके पास इतनी सारी सर्विसेज हैं कि एक यूजर उसको हैंडल ही नहीं कर पा रहा है। It's really Mhm. difficult. Means you know very well about कि how we can do that, but unfortunately timing का issue है। We don't have Mhm. enough time. ठीक है, इतने सारे टिकट्स हैं कि कुछ ना कुछ डेली बेसिस पे आपको 3 से 4 टिकट्स आपकी मीन्स जिसको आप छोड़ ही देते हैं, मीन्स छूट ही जाती है अकॉर्डिंग टू द ड्यू टू रीजन ऑफ लैक ऑफ टाइमिंग। Hmm. So what you need to do is issues को resolve करने के लिए you must need to discuss with our team, organization, with our TL, and ask to hire some few engineers. Those engineers are responsible to manage these services. ये Mhm. सर्विसेज ऑलरेडी आपके पास पोर्टल पे चल रही हैं। 25 VM आपने 5 VNet बना रखे हैं, स्टोरेज आपने 10 परचेज कर रखे हैं। इट इज रियली डिफिकल्ट टू हैंडल दीज सर्विसेज। सो Azure AD can help you. You need to hire few engineers. आपने एक इंजीनियर हायर किया with name of maybe any name with name of Hmm. ABC। एक इंजीनियर Hmm. आपने हायर किया with name of टेस्ट।
और एक इंजीनियर हमने हायर किया विद नेम ऑफ क्लास। हम्म, ये 3 डिफरेंट इंजीनियर्स आपने हायर किए हैं और अपने एज्यूर पोर्टल, बिकॉज नो एनी ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट अ सेपरेट सब्सक्रिप्शन फॉर दीज गाइज, नहीं क्रिएट करेगा कोई भी सब्सक्रिप्शन, क्योंकि ऑलरेडी आपके पास सर्विसेज रन कर रही हैं, आप इन्हीं सर्विसेज को क्या करेंगे, शेयर करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। हम्म, सो एबीसी को आपने अथॉरिटी दे दी कि ये हमारा जो बंदा है ये केवल वीएम्स को देखेगा। हम्म, टेस्ट रिस्पॉन्सिबल टू मैनेज द नेटवर्क, इसको ओके, आपने नेटवर्किंग के ऑप्शन दे दिए और इसको आपने स्टोरेज प्रोवाइड कर दिया। हम्म, आप मॉनिटर कर रहे हो, आप इसकी मैनेजमेंट कर रहे हो पूरी तरीके से। ये बंदा सिर्फ और सिर्फ वीएम को कंट्रोल करेगा, ये केवल नेटवर्क को कंट्रोल करेगा और ये स्टोरेज को क्रिएट करेगा, मैनेज करेगा। ओके, नाउ सो व्हाट यू नीड टू डू, एज यू रेडी will create 3 account, मल्टीपल अकाउंट क्रिएट करते हैं, इट्स फुल्ली डिपेंड अपॉन यू। हम्म, और हर अकाउंट को IAM के जरिए, आई होप यू नो अबाउट IAM, या, राइट, हर हम्म, अकाउंट को IAM के जरिए सर्विस को डिस्ट्रीब्यूट कर देगा कि यू आर एलिजिबल टू मैनेज द सर्विसेज ऑफ वर्चुअल मशीन। आप विनेट देखोगे, आप स्टोरेज देखोगे, जो भी टास्क हो रहा है आप यहाँ से बैठ के मॉनिटर करोगे बैकएंड से। हम्म, इज दैट क्लियर? यस, दिस इज द फर्स्ट टास्क, IAM प्लस यूजर एक्टिविटी। और यूजर्स की प्रॉपर्टीज में मल्टीपल ऑप्शन दिखाई पड़ेंगे जो कि हम आपको प्रैक्टिकली दिखाते हैं पोर्टल के लिए चल के। ओके, इन आर केस दिस इज माय रूट अकाउंट, क्योंकि हमने इसमें सब्सक्रिप्शन यूज किया है, हम्म, सारी चीजें इसमें प्रॉपर तरीके से रन कर रही हैं। व्हाट आई एम गोइंग टू डू, आई एम जस्ट गोइंग टू क्रिएट फ्यू एक्टिव डायरेक्टरी यूजर, और उन एक्टिव डायरेक्टरी यूजर को अलग अलग ऑप्शन प्रोवाइड करेंगे। ओके, Go to the more services and click active directory. Although I have already created multiple user account, these all are the users which is available like AWS, GCP, Tata, Telnet, ये सभी हमारे पास users available है। हम्म। So whenever you are going to create any user, so what is the mandatory, means prerequisite you require for email ID, anything licensing or anything else, something like that? Sorry, can you please repeat again? So whenever you are going to set up any user, so Hmm. what is the prerequisite you required from here? Not requirement, we just need to select the name only. हमें इसमें केवल नेम असाइन करना पड़ेगा उस यूजर का, और जस्ट नीड टू एसोसिएट विद आवर डोमेन नेम, जो भी डोमेन नेम अपने पास अवेलेबल है उसको हम एसोसिएट कर देंगे। whenever we So sign up so ourselves over Azure portal, mhm. Azure will provide you one default domain associated with onmicrosoft.com. जब Okay. भी हम साइन अप करेंगे हमें एक बाय डिफॉल्ट डोमेन मिल जाएगा, लाइक इन आर केस Mhm. So we can register multiple domain over here, is it? करेक्ट। Means okay. Now let me show you. Hmm. This is the custom domain, and whenever we click on custom domain, we are able to find this is default custom domain name. ITVDs Okay. something on Microsoft.com. This is my custom domain, and you have option to Hmm. add your own custom domain जो आपने godaddy.com से परचेज कर रखा है। You can directly attach here, and जब भी आप यूजर बनाएंगे वो आप कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। Okay. Okay, so now I'm going to create one user, new user, click create new user,
invite and create. So I'm going to proceed with create new user account with name of test. Display name is also test. Mm-hmm. Let me select my on password. I don't want to make it member of any group. A number of groups are available. These groups are responsible to manage the services. Okay. And click create. So here is the one option when you click on the create, so invite. So whenever you send an invitation to the different user, he just going to register himself, and once he registers, he automatically come to this pool, and you have to approve or what? Sorry, can you please repeat again? Okay, so there is the option like create new user. So once we go the new user, there is the two option. Either you can create or either you can send the invitation to external user. We Hello. have option to share the invitation to share external user which is considered as a guest user account. तो अभी हम guest के बारे में बात करेंगे. We just trying to understand about कि Azure AD काम कैसे करता है. Okay. We can perform the task of our what we can say that we can manage the services with our invite user जिसको हम guest user Hmm. के टाइम पे बात करते हैं. Hmm. But now let me create one user. We created one user with name of test, I think, right? Yes. ये टेस्ट यूजर हमने ओपन किया. आई एम जस्ट गोइंग टू यूज द सेम यूजर टू लॉग इन आवर न्यू पोर्टल. Copy the user account. This is our user account, and let me open in incognito wizard. Portal.azure.com and test at the rate something. Default password आपको देना पड़ेगा. This is the first login, so you must need to change password on first login. Now we successfully log in on another Azure portal, but this portal is associated to Hmm. दिस पोर्टल इज एसोसिएटेड विद आवर रूट अकाउंट. मींस इसके पास कोई भी राइट्स हमने नहीं शेयर कर रखा है. अभी इस यूजर के ऊपर कुछ भी राइट्स नहीं है. मींस ये यूजर कोई भी टास्क परफॉर्म नहीं कर पाएगा. Okay. राइट. वी आर एबल टू फाइंड ईच एंड एवरी ऑप्शन. यहाँ पे सारी सर्विसेज दिखाई पड़ेंगी, सारे ऑप्शंस दिखाई पड़ेंगे, बट वी आर अनेबल टू परफॉर्म एनी टास्क. हम यहाँ पे कोई भी नई सर्विस परचेज नहीं कर सकते हैं. कोई भी एग्जिस्टिंग सर्विस की इंफॉर्मेशन नहीं रहेगी जब तक हमारा रूट अकाउंट हमारे साथ उसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेगा, शेयर नहीं करेगा. Hmm. This is root account. This one is our Azure AD account.
I think it's mandatory to configure multi-factor authentication. Mhm. Now we are on page of our Azure portal, but we log in through Mhm. the test. अब देखिए यहाँ पे टेस्ट से जो हमारा यूजर है विच इज एसोसिएटेड विद रूट अकाउंट. Mhm. Okay. ITD ITDB BD 764. Yes. इस पोर्टल के ऊपर वी आर एबल टू फाइंड द ऑल सर्विसेज, बट अगर आप इनको क्रिएट करते हैं, आप इनको ओपन करते हैं ना, वी आर एबल टू Mhm. फाइंड, वी आर अनएबल टू फाइंड एनीथिंग. इट विल आस्क यू टू स्टार्ट फ्री ट्रायल, या फिर आप अपने एडीसी कनेक्ट करो, या फिर आप कोई भी स्टूडेंट पासेस वगैरह का इस्तेमाल कर सकते हैं. बट Okay. आई वांटेड टू डिस्ट्रीब्यूट द एग्जिस्टिंग सर्विसेज. जो हमारे पास सर्विसेज है वो हमारी सर्विसेज को शेयर कर सकते हैं. Okay. So I'm going to share one service from our Azure portal, means root account to this particular user account test @ something. अगर हम यहाँ पे VM की बात करें तो I don't think we have any virtual machine right now. यहाँ पे कोई भी virtual machine नहीं. It will ask you about the services means that you want to share. Back to the root Correct. account, and we just need to click our service. Just give me 1 minute, please. Mhm. We have a one virtual machine with name of backup, right? And Mhm. I wanted to share this particular virtual machine to this particular VM. Okay. सॉरी, दिस पर्टिकुलर Azure User. account, है Mm. ना? तो आपको कुछ Mm. नहीं करना है. किसी भी सर्विस को अगर आप ओपन करते हैं ना, तो इट विल गिव यू वन ऑप्शन, IAM, आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट. यू नो वेरी वेल अबाउट. Mm. एक्सेस कंट्रोल पे क्लिक करेंगे, ऐड पे जाएंगे, ऐड रोल एंड फीचर्स या ऐड रोल एंड असाइनमेंट्स, क्लिक किया. Select the role what you want to make it, contributor, reader, or owner. So I wanted to make it contributor. Okay. Next, this is the panel where we can select the users. तो So अपना here the यूजर जो, contributor is not able to manage the users or what? Means नो नो, in AWS there is the power user and different user is हाँ there. So हाँ, what is the mean for एग्जैक्ट. contributor? Contributor can work just like a power user in AWS. Okay, he's not going to manage the IAM service, but he will launch any of the service, something like that. Able to make any changes with virtual machine. Okay. उस VM में कोई changes करना है, उस VM में कोई activity perform करनी है, Mm-hmm. so our contributor able to do that. Okay. Select, click select again, review and assign. Hmm. So we shared only the virtual machine. हमने कोई भी दूसरी सर्विस डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर रही है, हमने केवल वर्चुअल मशीन को डिस्ट्रीब्यूट किया है टेस्ट के लिए. बैक टू द टेस्ट यूजर एंड रिफ्रेश द पेज.
It will take up to 30 to 40 seconds and you will find Okay. the virtual machine that you shared. थोड़ा सा टाइम लगेगा यहाँ पे हाईलाइट होने में. Mm-hmm. Okay. We are able to find the virtual machine backup VM in test user account. अब ये क्या है, ये वर्चुअल मशीन की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी को हैंडल करेगा. जो भी कुछ रिक्वायरमेंट आएगी, वीएम से रिलेटेड टिकट्स आएगी ना, वो हमारा टेस्ट यूजर हैंडल करेगा. एडमिन फ्री रहेगा उस टाइम पे, Got it. बिकॉज द एडमिनिस्ट्रेटर रिस्पॉन्सिबल टू परफॉर्म अनदर टास्क. उसके पास ऑलरेडी बहुत सारे टास्क हैं, तो ये अपने वर्कलोड को टीम के साथ डिस्ट्रीब्यूट कर दिया कि ये यूजर जो है हमारे या ये पर्टिकुलर यूजर हमारा जितनी भी वर्चुअल मशीन है उनको सबको टेक केयर करेगा. So that's why we shared the virtual machine through the IAM services. Is that clear? Yes. So अभी यहाँ पर हमने सिंगल रिसोर्स को उसको दिया है. अगर इफ आई वांट कि नहीं मैं ये वीएम पूरा पार्ट यही मैनेज करें, सो इज Hmm. देयर एनी ऑप्शन लाइक कि मैं पूरा का पूरा Custom रिसोर्स role. उसको दे दूं, कस्टम Yeah, कि मतलब custom वर्चुअल role. मशीन उसको दे दूं? अच्छा, हाँ, सो वी विल. ओके. we'll create a custom role and custom role हम assign कर देंगे. This is the built-in role. अभी तो हमने built-in select किया था ना. We have option to design the custom role. और उस केस में कौन सी सर्विस आपको असाइन करनी है, इंटायर सर्विस प्रोवाइड करनी है, इंडिविजुअल मशीन प्रोवाइड करनी है, इंडिविजुअल रिसोर्स प्रोवाइड करना है, वी कैन डू दैट. उनमें से ओके. कोई भी सर्विस हम असाइन कर पाएंगे. करेक्ट. करेक्ट. You can start, you can stop, you can connect, you can manage the virtual machines disks. सारी चीजें जो कंट्रीब्यूटर के पास राइट्स हैं वो सारे टास्क परफॉर्म कर पाएगा. ओके. ये बहुत ही बेसिक सा एग्जांपल, बहुत ही छोटा सा एग्जांपल हमने देखा related to the management of our Active Directory. So take 2 minute time, go through the topics that we completed and let me ओके. know if you have any question. श्योर. सो मंजीत, आई एम गुड फॉर दैट वन. सो यहाँ पर हम सब्सक्रिप्शन लेवल पे भी उसको असाइन कर सकते हैं ऐसा? हाँ हाँ. सब्सक्रिप्शन होगा एडी पे, Yes. या जैसे एसओसो साइट, एसओसो लगाना है, इसको सिंगल साइन ऑन लगाना है, तो वो भी कर सकते हैं ना एडी के थ्रू? दिस इज सो. Exactly. A number of options are available in case of Azure Active Directory. ये तो just base discuss किया कि आप अपने यूजर को रिसोर्स. IAM के थ्रू, राइट, आप किसी भी रिसोर्स को, Azure सर्विस को या फिर Azure सब्सक्रिप्शन को we are able to distribute. ओके. एंड वन क्वेश्चन. सो वंस वी रिसोर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, इफ आई वांट टू चेक ओके व्हाट ही डिड ऑन दिस पर्टिकुलर रिसोर्स में, क्या किया उस यूजर ने, सो मेन अकाउंट से हम चेक कर पाएंगे या नहीं? मेरे को इसी अकाउंट में आके उसके लॉगिन को चेक करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा यहाँ? Root can perform every task ना. Root is the owner of this particular account, तो वो कुछ भी कर हम्म. सकता है. मॉनिटर करने के लिए, लॉग्स को जनरेट करने के लिए, कितनी बार रिस्टार्ट हुआ, स्टॉप हुआ, वो सारी चीजें आपका ओके. एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट चेक कर सकता है कभी भी.
Okay. 24/7. So no need to discuss with our client, no need to discuss with our employee कि आपने क्या क्या टास्क परफॉर्म किया, आपने पोर्टल ओपन किया, 5 मिनट का टाइम दिया है उस यूजर के लिए और वो सारी एक्टिविटी आप जो है Okay. इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं, बिकॉज वी डोंट हैव अ टाइम टू डिस्कस विद आवर पर्टिकुलर एम्प्लॉय जिसको हमने IAM के थ्रू सर्विस डिस्ट्रीब्यूट की है. वी जस्ट नीड टू ओपन द पोर्टल, एजूर एडमिन पोर्टल, और उसके जरिए हम सारे Mm, टास्क परफॉर्म कर सकते हैं. Okay. Clear? So this is Clear. all about our basic information about Azure services. I hope you good with the content that we covered today. Yes, yes. So we'll connect tomorrow and discuss about the another services based on Active Directory, क्योंकि बहुत सारा content है ADK के साथ, तो अभी just base बना Okay. रहे हैं and we'll follow the proper content of Microsoft AG104. Is it okay? Yeah, it is fine. So मेरे को कल कुछ कवर करना है क्या, मतलब कि बिफोर लॉगिंग You टू just इनटू go इट? through the topic. You just go through the topic based on Active Directory only. ओके, फाइन. एज रेडी की जितने भी सर्विसेज आप देख पाए वो सारी चीजें देख लेना, क्योंकि आई थिंक कल का पूरा टाइम जाएगा एज रेडी के लिए, और विल ट्राई टू कॉन्फ़िगर द हाइब्रिड बाय नेक्स्ट वीक. तो बट आप एडी अपनी तरफ से देख लेना, बाकी चीजें हम लोग मैनेज कर लेंगे. ठीक है? श्योर. ओके, थैंक्स मैन. ओके, वेलकम. विल शेयर द रिकॉर्डिंग इन नेक्स्ट few hours because I need to convert it. श्योर, डेफिनेटली. थैंक Okay, यू. thank you. Take care. थैंक यू. Bye.